तो डे वन डे टू में नहीं हुआ था प्लेसमेंट, डे थ्री में मेरा प्लेसमेंट हुआ था अडानी गिरी एनर्जी में। थर्ड ईयर में जब मैं आया तो थोड़ा डायरेक्शन मिला, थोड़ा मैं सीरियस हुआ अपनी लाइफ को लेके। उसी ईयर ना आईआईटी कानपुर से कुछ प्रोफेसर आए थे, कुछ टीचर्स आए थे। सर आईटी बॉम्बे का जैसे कल्चर के बारे में बहुत सुना है सर, एमटेक वाले कितना एंजॉय कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट जो कह सकते हैं वो आईआईटी बॉम्बे में जाके सीख लिया। जैसे एंजॉय करने पे सेचुरेशन आ जाता है, इतना एंजॉय कर चुके हैं, अब लाइफ में कुछ करना ही है। Today we have our guest Devendra Kumar sir, who has completed his masters from IIT Bombay and also undergraduated from Triple MUT Gorakhpur in Electronics and Communication branch. So welcome sir. So thank you so much for inviting me in your podcast. I am very happy to share my entire education journey with you. Okay. Would you like to add any some intro? What I have missed in your intro? Any points would you like to add? Yes, sir. If I am talking about my school journey and undergraduate journey and graduate, post-graduate journey and after the college life and interviews, I want to share my all experience one by one. If I talking about myself, my name is Deven Kumar. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. My schooling from Ludhiana, Punjab, where I studied nursery to 8th class. After that, I moved to the Gorakhpur and complete my class 9 to 10th from UP board. Later, I prepared for the some polytechnic examination like Jacob examination. I secured admission in government polytechnic Devariya. In the final year of diploma, I have started preparing for the next exam of Tekal MUT Gorakhpur. After after that counseling process, I got the admission in the Triple MUT in 2018 in the Electronics and Communication Engineering branch. I began my journey in 2018 when I joined the Triple MUT Gorakhpur and Communication Engineering branch. In the first year and the starting year, I mainly focused on the coursework and the same time prepare for the government examination like SSC, MTS, banking, railways. At the same time, I had no clear idea about my interest or career direction. Beginning of the BTech, no direction. I appear in the railways exam. At the same time, I have no clear idea about my passions actually. I appear in the some examination like SSC, MTS, Phase 9, SSC Phase 9, Loco Pilot, SSC JE, and even an exam. I qualify a exam in Indian Oil as a junior engineer, but I did not get through the final round after the interview. बिकॉज़ द वो जो वैकेंसी थी वो बिहार की वैकेंसी थी। उसमें क्या था कि एक मेरा 1-2 नंबर कम था इंटरव्यू में, तो बिहार का जो एक लड़का था उसको प्रेफ़रेंस दिया गया था। उसमें एक ही सीट थी, तो उसको उसमें दे दिया गया था। हाँ, उसके बाद मेरी जो है इन थर्ड ईयर में ही मेरा इंटरेस्ट जो था और थोड़ा मुझे अपने लाइफ़ का पाथ पता चला कि टेक्निकली बैकग्राउंड जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे किस पाथ में जाना है, क्या नहीं जाना है। तो जब थर्ड ईयर बीटेक में पहुँचा मैं, उसके पहले तो बस जो पढ़ाई चल रही थी, ऐसी चली जा रही थी। My starting shifting to tower the technology I learn उसी समय मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखना शुरू किया था। जैसे सी, पाइथन, मशीन लर्निंग ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म थे, कोर्सेरा थे, उडमी थे, उसके बाद उस पे ही और उसी ईयर ना आईआईटी कानपुर से कुछ प्रोफेसर्स आए थे, कुछ टीचर्स आए थे। वो कुछ कोर्सेज़ हमें पढ़ाए थे, जैसे कि आईओटी था, मैटलैब था, पाइथन था और मशीन लर्निंग था। ये सब कोर्सेज़ उन्होंने कराया था। वो वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया था आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्ट पूरा ऑनलाइन ही बेस्ड था। तो उसका था कि बिल्डिंग का जो पावर एफिशिएंसी होता है उसको कैसे मतलब बिल्डिंग्स होती हैं उसमें रूम्स होते हैं जैसे कि अब उस रूम में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो अगर रूम में कोई नहीं है तो उसके बाद भी लाइट और पंखे और एसी वगैरह उसमें चलते रहते थे। तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग का ऐसा कुछ था कि अगर पूरा रूम एम्प्टी है, उसमें कोई नहीं है, तो एसी, फैन, लाइट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाते थे और जब कोई उसमें एंटर होता था तो वो ऑन हो जाते थे। यहाँ से वो थोड़ा-सा मुझे अपना इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड समझ आया और बीटेक फाइनल ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोफेसर एसके सोनी सर के अंदर कर किया था, वीड डिटेक्शन यूजिंग द एआई एंड ड्रोन्स। वहाँ मैंने सीएनएन का यूज़ करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद अब फाइनल ईयर हमारा तो कोविड में था, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स वगैरह सब ऑनलाइन ही हुए। उसके बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन जो किया थर्ड थर्ड ईयर से ही थोड़ा बहुत रोड मैप टाइप का मैंने रेडी कर दिया था वो पढ़ने के लिए और सेल्फ स्टडी थी मेरी।
अब तक मैंने जो भी कोचिंग वगैरह कोई नहीं किया था अभी तक। ओके। सिर्फ कुछ दिन कोचिंग में गया था, ऐसा नहीं है। कोचिंग गया था 1 हफ्ते, तो वहाँ क्या होता है कोचिंग में काफी देर तक वो लोग एक क्लास चलती है 6-6 घंटे की, 8 घंटे की लगातार, 4 घंटे 5 घंटे बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता था मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करूंगा। तो यूट्यूब से कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ दोस्तों के हेल्प से खुद खुद ही पढ़ना शुरू किया था। जो ITRC था वहाँ पे, पता नहीं अब तो ओपन होता है कि नहीं होता है, पहले हाँ, होता है। नाइट और डे पूरा उसमें ओपन रहता था। तो हम लोग वहाँ पे काफी टाइम तक, लंबे टाइम से वहाँ पढ़ते थे। फिर उसके बाद गेट 2021 में मैंने अपियर हुआ गेट इसी ब्रांच से। तो गेट 2021 का जो था वो थोड़ा टफ था, पिछले जो साल के जितने प्रीवियस इसके पेपर में लगाया था, तो थोड़ा मुझे टफ लगा। तो फिर भी वो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैं काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। काउंसलिंग प्रोसेस में मुझे टॉप IIT जितने थे लगभग सब ऑफर्स हुए थे। IIT खड़गपुर, कानपुर, फिर वहां से मद्रास भी मिला था। सर मैं सेकंड राउंड तक IIT, हाँ, सर IIT बॉम्बे मिल गया था। मैं IIT सर दिल्ली का एक्चुअली वेट कर रहा था। आपकी गेट रैंक क्या गेट थी? रैंक, नहीं गेट रैंक तो मेरी ज्यादा थी, लेकिन वो मेरी थी तो उसमें मेरा हो गया था। मुझे ऑफर्स मिलते थे। मैं IIT दिल्ली का वेटिंग कर रहा था, लेकिन IIT दिल्ली मुझे लास्ट तक नहीं मिला, तो मैं IIT बॉम्बे को ही लॉक कर दिया था लास्ट वाले में। उसमें स्पेशलाइजेशन मुझे कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग मिली थी। तो वहां से फिर मेरा MTech स्टार्ट हो गया। सर ये तो हो गई कॉलेज, आपकी कॉलेज जर्नी की बात। अब कॉलेज में होता है कि कॉलेज के जो जैसे कुछ चैलेंजेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे अपने कॉलेज टाइम पे? हाँ, तो मेरी तो कॉलेज लाइफ दो तरह की थी, एक ट्रिपल MUT की थी हम्म। और एक IIT बॉम्बे की थी। तो ट्रिपल MUT वाली की जो कॉलेज लाइफ थी, तो जैसे सबके साथ ही होता है, हम्म। और मेरे साथ भी वैसे सेम हो रहा था कि जब स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं वो तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा हमें डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि हमें क्या करना है, कोडिंग वाले फील्ड में जाना है यस। या गेट के फील्ड में जाना है या सरकारी जॉब में जाना है। हम्म। तो जैसे सब करते हैं वैसे ही मैं भी लगभग करता था कि क्लास वर्क पे पूरा फोकस रहता था। तो होमवर्क जो भी होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पे पूरे फोकस रहते थे। डायरेक्शन कुछ डिफाइंड नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ। थर्ड ईयर में जब मैं आया तो थोड़ा डायरेक्शन मिला, थोड़ा मैं सीरियस हुआ अपनी लाइफ को लेके, मैं इसको पढ़ाई को लेके सीरियस हुआ कि मुझे आगे क्या करना है। तो अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें सिलेक्शन भी हुआ था मेरा ऑफ कैंपस में, कॉग्निजेंट में हुआ था। और साथ ही साथ गेट का रिजल्ट भी आ चुका था, तो मैं फिर उसमें चला गया। तो फिर जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में बधाई दिया वहाँ पे, तो IIT बॉम्बे में गया तो वहाँ पे एक और चैलेंजिंग फेस किया। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोर्स वर्क के साथ साथ आपको टीए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, टीचर असिस्टेंट ड्यूटीज होती हैं, उसी के बदले आपको पैसे मिलते हैं। 12,400 जो स्टाइपेंड्स आते हैं वो जैसे उसी के जैसे बिहाफ सर में आते हैं। एनपीटीएल वगैरह वाले में होता है असिस्टेंट करने। हाँ, उसमें भी होते हैं। और टीचर असिस्टेंट में क्या होता है कि IIT बॉम्बे में, IIT जो भी IIT होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोफेसर जो होते हैं वो आते हैं, बीटेक वालों की क्लास लेके और वो चले जाते हैं। उसके बाद लगभग उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जो MTech वाले होते हैं, जो PhD वाले लोग होते हैं, हाँ। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉपियाँ चेक करना होता है और उनका पूरा लैब कराना होता है और काफी चीजें होती हैं। तो उसमें थोड़ा सी डिफिकल्टी महसूस हुई, क्योंकि पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो थोड़ा उसमें लगता था। तो लेकिन वहाँ पे सीनियर्स जो थे वो काफी हेल्प किए, तो उससे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट था, हाँ। टाइम मैनेजमेंट जो कह सकते हैं, वो IIT बॉम्बे में जाके मतलब चैलेंज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन उसको धीरे धीरे मैंने मैनेज करना सीख लिया। और क्या कहता था कि उसमें प्रेशर भी क्रिएट हो जाते थे, क्योंकि एक ही वीक क्या होता था कि सारे असाइनमेंट के लास्ट डेट होते थे, और एक ही वीक सारे लास्ट डेट होते हैं और उसी दिन सारे को सबमिट करना होता था। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था अंडर प्रेशर में काम करना जो होता था वो। धीरे धीरे वहां से डेवलप हुआ कि हाँ, काम किया जा सकता है। हम्म। ये दो चैलेंजेस थे ऐसे। एमएमयूटी से आईटी बॉम्बे जाने की जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने बताया था काउंसलिंग वगैरह के बारे में तो बता दिया है, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट कब से हुई? मतलब कब से आपने प्रिपेयर करना शुरू किया? एक टारगेट आपका मास्टर्स करना ही था कि कोई और जॉब वगैरह अटेंड करनी थी? मेरा तो पूरा फोकस, जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरा पूरा फोकस प्लेसमेंट पे ही था। ओके। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट उतनी कंपनियां आई नहीं थी और मेरा होने को नहीं था। लेकिन मैं साथ साथ, लॉकडाउन लग चुका था उस समय, चला गया। तो उसके बाद मैं, तो हाँ, लॉकडाउन के पहले की बात है। तो उसके बाद गेट का प्रिपरेशन पहले भी चल ही रहा था। और हमारे ट्रिपल एमटी का सिलेबस वैसा है कि हाँ। गेट से मुझे लगता है हाँ। थोड़ा थोड़ा मैच करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अलग नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत है। आपको अपने सिलेबस अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो गेट में हाँ। ठीक ठाक हो जाता है। और एप्टीट्यूड जो था वो मेरा पहले से थोड़ा था, मैथ था मेरा पहले से थोड़ा तैयारी था, क्योंकि मैं पहले SSC का एग्जाम वगैरह देता तो वो थोड़ा मुझे हेल्पफुल किया वहाँ पे। तो मैं बोला गेट का एग्जाम दे ही लेते हैं।
गेट को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, डेडिकेशन पूरा कि मेरे को गेट एकदम दे ही देना है, ऐसा मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन उन उन दिनों जो पढ़ने में था, कुछ ऑप्शन था ही नहीं करने के लिए, प्लेसमेंट हो नहीं रहे थे, तैयारी पे ही पूरी फोकस थी। तो पूरा जो भी था दम कम लगा के, जो भी हमारे आस जो भी दोस्त यार थे, तो सारे लोग मिलके वही पढ़ते थे, गेट का ही पढ़ते थे। थर्ड ईयर में ही, थर्ड ईयर के बाद ही लास्ट था, मतलब फाइनली स्टार्टिंग में ही फैब में एग्जाम था उसका, तो एग्जाम हम लोग दे के चले आए थे। अब उसके बाद भी अभी एग्जाम, फाइनल ईयर के एग्जाम जो थे ऑनलाइन ही बेस पे होते थे। मेरे पास तो कॉग्निजेंट के ऑफर था, तो मैं सोचा था, नोएडा था मेरी पोस्टिंग वहाँ पे, तो मैं सोचा था कि अगर गेट में नहीं हुआ तो मैं जाकर उसको ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन गेट का रिजल्ट आया तो वो उसमें हो गया, रैंक ठीक ठाक आ गए और स्कोर भी ठीक ठाक था। तो उसमें क्या हुआ कि बोले, मुझे नहीं लगा कि हो पाएगा, तो बोले सब काउंसलिंग कराओ। तो काउंसलिंग कराने में पूरी क्लास को मैं परेशान करके रखता था, ग्रुप में ही डाल देता था कि ये कॉलेज मिला, बताओ कौन सा चूज करना है, ठीक। प्रोफेसर से कॉल करके, जो सीनियर है उनसे पूछ के, तो डे वन टू तो कैसे भी निकला, कोई भी कॉलेज मिलते थे, ये IIT मंडी नहीं लो, गाइड करता था कि ये मत लो, वो मत लो, ये वाला ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है, ऐसे करते 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 लास्ट में वो फिर गेट में चला गया, फिर वो ऑफर वगैरह छोड़ दिया। फिर मैं जब IIT बॉम्बे में गया तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं पूरा फोकस जो था एमटेक पे ही था। मैंने पूरा कोई अब काम, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, मैं पहले उसमें भी था, इंटरसाला पे भी था, इंटर्नशिप किया था कहीं, कम्युनिटी मैनेजर था मैं उसमें, और कई सारी चीजें मैं था, और कई सारे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा, IIT रुड़की था, IIT कानपुर था, उसमें ब्रांड स्टूडेंट एम्बेसडर कुछ तो बना के रखे थे वो लोग। तो उसमें कुछ नहीं, उसमें नोटिफिकेशन सब उसमें शेयर करने होते थे, तो वो भी मैं कई सारे काम पूरा, हाँ, तो उसमें पूरा मैं छोड़ ही दिया वो सब काम जब IIT बॉम्बे में, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है। और उसमें एमटेक में क्या होता है कि अपने यहाँ क्या है, ट्रिपल एम में यहाँ पे कि आपको सारे सब्जेक्ट कॉलेज डिसाइड कर लिया है, अब आपको वही पढ़ने। IIT में क्या होता है कि आपको कॉलेज सब्जेक्ट खुद नहीं, मतलब खुद ही डिसाइड करने हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, पूरे 2 साल में 11 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने हैं। उसमें सेमिनार और प्रोजेक्ट भी होते हैं, एमटेक प्रोजेक्ट होते हैं। तो मैं फर्स्ट सेम में ही 5 सब्जेक्ट ले लिया था। तो और फर्स्ट सेम में ही 5 ले लिया था, और सेकंड सेम में मैंने 5 लिए थे, 10 खत्म हो गए थे। दो दो एक सब्जेक्ट बचे थे, तो हमने लास्ट फोर्थ सेम में लेकर, प्लेसमेंट के बाद उसको लेकर मैंने कर लिया था। तो ऐसा निर्णय मैंने नहीं लिया था कि मुझे गेट करना ही है, एमटेक में जाना ही है। मेरा पूरा बेस जो था जॉब ओरिएंटेड था। मेरा ऐसा ऐसा नहीं था कि मुझे एमटेक करने जाना है, मेरा ऐसा कुछ फोकस नहीं था। लेकिन बाय लक कह सकते हो या बाय चांस कर सकते हो, मुझे वो ऑफर मिला और मैंने उसको ग्रैब किया। तो सर एमटेक जैसे कोई करना चाह रहा है, तो एमटेक के साथ अगर उसकी फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो मैनेज कैसे करेगा एमटेक को? एमटेक की जैसे फीस होती है, आईटी बॉम्बे वगैरह होगी, वहाँ की फीस भी होती है, और जैसे स्टाइपेंड वगैरह से कैसे उसको मैनेज कर सकता है अगर उसके पास एक फाइनेंशियल इशू आ रहा है फैमिली बैकग्राउंड से? देखो, मैं अपना नहीं, मैं अपने क्लासमेट्स की एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा। देखो, क्या होता था, मैं तो मेरे को जो स्टाइपेंड मिलता था, मैं उसको फीस में भेज देता, घर पे ही कुछ कुछ पैसे भेज देता था। कुछ लड़के ऐसे भी थे मेरे नॉन में थे वहाँ पे, वो जो आसपास के कॉलेज थे, स्कूल थे, उनमें वो लोग ज्वाइन कर लिए थे। तो क्लासेस करने के बाद वहां पे भी जाकर वो पढ़ा सकते थे, कुछ कुछ कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे, तो कोचिंग में भी जाकर पढ़ा लेते थे, कुछ लोग ऑनलाइन सेशन लिया करते थे, तो वहां से वो पैसे इकट्ठा कर लेते थे। और कई सारे काम जो थे, जैसे कि आप पढ़ाई के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड सेम में ये सब काम कर सकते हो। जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। और प्लेसमेंट जान ही रहे होगा IIT का कैसे होता है, डे 1 डे 2 दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, डे 1 डे 2, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो पैसे वाली जो दिक्कत आती है, तो स्टाइपेंड के साथ खत्म हो जाता है, लगभग लगभग खत्म हो जाता है। अगर आप पूरे पैसे अगर गलत जगह नहीं खर्च कर रहे हो, तो पूरे पैसे आपके इनफ होते हैं कॉलेज की फीस भरने के लिए। लगभग 1 मतलब पूरे साल का देखा जाए तो 1 डेढ़ लाख रुपए मिल जाता है। और फीस कितनी होती है, 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में होती है। ये उतना इनफ हो जाता है। अगर अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वो दो चीजें जो मैंने बताया कि ऑनलाइन वर्क कुछ लोग करते थे, और कुछ लोग कॉलेज आसपास से ज्वाइन कर लिए थे। ओके सर, आईटी बॉम्बे का जैसे कल्चर के बारे में बहुत सुना है, तो वहाँ का कल्चर एमटेक वाले कितना एंजॉय कर पाते हैं एज कम्पेयर टू बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं? कंपेरिजन करें तो मैं मेरे को लगता है ऐसा कि बीटेक वाले ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 साल होता है। जेडबल का तैयारी करके आते हैं, मेंस एडवांस जो भी तैयारी करते हैं, उसमें अपना टाइम आधा खत्म कर चुके रहते हैं, 1 2 साल जो भी है। फिर वो आते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, पूरा इनफ टाइम रहता है एंजॉय करने के। उनकी प्लेसमेंट कब स्टार्ट होती है, लास्ट में, थर्ड ईयर और वो फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में, मतलब उनकी प्लेसमेंट लगभग तब तक होती है। और हमारे बीटेक में क्या होता है, एमटेक में क्या होता है कि जो बच्चे आते हैं वो डायरेक्ट बीटेक से एंजॉय करके आ चुके हैं,
हाँ, बीटेक में जितना उनको अपना करना था मैक्स, वही है। वो अपना करके किए रहते हैं। अब एमटेक में आते हैं तो उनका मैं 70-80% में लोगों को बता रहा हूँ, उनका पूरा फोकस प्लेसमेंट ही होता है। कुछ लोग का रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं कि उनको पीएचडी करना है, आगे जाना है, लेकिन मैं मोस्टली देखता हूँ कि उनको प्लेसमेंट पे ही फोकस रहता है। तो वो कोर्स भी जो करते हैं, टाइम अपना बचा बचा के करते हैं। इंजॉयमेंट तो पूरी है, मतलब इंजॉयमेंट आप करने के लिए इतने क्लब्स हैं, इतनी जगह घूमने के लिए है, इतने स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे, इंटर ये जो गेम्स होते हैं उनमें हम्म, पार्टिसिपेट कर सकते हो। करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये इच्छा भी रहती है तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना आप इंजॉय करोगे। 1 महीना करोगे, ये 6 महीने करोगे, 1 साल, अगले साल फिर प्लेसमेंट आ गई। फिर प्लेसमेंट के बाद थोड़ा दिसंबर के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। दिसंबर के बाद जब प्लेसमेंट आपका हो जाता है तो आपका रिलैक्स माइंड होता है। 6 महीने होती है, और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है ऑफिस में, जिसकी भी जहाँ आपको पोस्टिंग होती है। दिसंबर में प्लेसमेंट होता है, फिर अगस्त अगस्त तक तो सबकी ज्वाइनिंग लगभग लगभग कहीं ना कहीं सब लोग अपना सेटल हो जाते हैं। तो इंजॉयमेंट के मामले में तो एमटेक वाले थोड़ा पीछे रहते हैं बीटेक वालों के मुकाबले में, क्योंकि बीटेक वाले पहले उनको शुरू बिगिनिंग रहता है, और हम लोग पहले से बीटेक अपना झेल के आ रहे थे वहां हाँ, पे, तो यहाँ का हम सोचते हैं थोड़ा संभल जाए। हाँ, ये होता है। पहले से एंजॉय करने पे सेचुरेशन आ जाता है कि इतना एंजॉय कर ही हम्म। चुके हैं, अब लाइफ में कुछ करना ही है, सीधा प्लेसमेंट हाँ वगैरह हाँ लेना है, हाँ। रिसर्च करना है। सर, यहाँ हम्म। आईटी बॉम्बे से आपको प्लेसमेंट के लिए ऑफर आए थे क्या, मतलब कितने कंपनी से, ऐसा कुछ? हाँ, आप बता रहा हूँ, जैसे कि तो टाइम फ्रेम उसका समझेंगे थोड़े। हम्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने होते हैं। ओके। अक्टूबर वाला जो मंथ होता है उसमें लगभग सारे आपके टेस्ट होते हैं। हम्म, जितनी कंपनियां आने वाली हैं लगभग सारे के टेस्ट होते हैं, और नवंबर तक उन सबके रिजल्ट आ जाते हैं। नवंबर तक, नवंबर लास्ट तक आपको सारे के रिजल्ट पता चल जाते हैं, आपने कितने कितने टेस्ट में क्वालिफाई किया है। ठीक है। और दिसंबर में आपकी सारी प्लेसमेंट्स होना शुरू हो जाती है। और वहाँ प्लेसमेंट कैसे होता है कि एक बिल्डिंग में अगर 20 फ्लोर है तो 20 फ्लोर पे एक एक कंपनी होती है, एक एक कंपनी एक एक फ्लोर पे, एक एक फ्लोर पे होती है। ठीक है। पूरा हॉस्टल खाली करा के पूरा बिल्डिंग दे दिया जाता है कंपनी को ही। तो एक एक, और जिस जिस आपने कोई टेस्ट में क्वालिफाई किया उसमें आपको तो पूरा चांस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब ये एक्चुअली में ये श्योर नहीं होता है कि उनके पास कितनी सीटें हैं और कितने लोगों को लेंगे वो। अच्छा। इतना वो कंफर्म हमें भी नहीं रहता है, हमें भी नहीं पता रहता, किसी को नहीं पता रहता ये चीज। तो हमें काम होता है इंटरव्यू दो, एक दिन में कम से कम 5-6 इंटरव्यू होते रहते हैं। हम सुबह अपना पहन के कपड़े जाते हैं, कोट पे टाई लगा के सुबह गए, और शाम तक 7 बजे तक हम इंटरव्यू दे रहे हैं, और वहीं पे खाना ही खा लिया या बाहर खाना खा लिया, शाम तक इंटरव्यू हमारा चल रहा है। क्योंकि जितने टेस्ट हम क्वालिफाई किए हैं, 6 या 7 जो भी हो टेस्ट, लगातार इंटरव्यू लगातार वो होते रहेंगे। और क्या होता है कि डे 1 डे 2 मेरा तो डे 1 डे 2 में नहीं हुआ था प्लेसमेंट। डे 3 में मेरा प्लेसमेंट हुआ था अदानी ग्रीन एनर्जी में। उसका सीटीसी जो था 20 लाख था, लेकिन ग्रॉस उसका 13 ही लाख था। मेरा उसका रिजल्ट मेरे को 2 दिन बाद पता चला था, मतलब 3 को प्लेसमेंट हो चुकी थी मेरे को, 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, 5। तो उस दिन मुझे पता चलेगा। उसके पहले मैंने कई सारे इंटरव्यू दे चुके था, मैं दे चुका था कि मुझे ऐसा था कि किसी में अब हो जाए, क्योंकि डे 1 डे 2 डे 3 जब बीत जाता है उस पर नींद आना बंद हो जाती है। हम्म, उसके बाद अब दिमाग में ये रहता है बस अब कहीं तो बस कोई प्लेसमेंट, कोई तो कंपनी आए आपको ले ले, बस ऐसा रहता है कि भले हम काम नहीं करेंगे लेकिन हमें प्लेसमेंट एक बार हो जाए। क्योंकि थोड़ा अंदर अंदर रहता है कि अरे यहाँ कॉलेज में आके प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो अब कहाँ होगा, जब इनमें नहीं हो रहा तो नहीं होता है। और जो लड़के भी होते हैं जो हमारे साथ के हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो भी आम लोग तो है नहीं, वो भी गेट हाँ, क्वालिफाई करके आए हैं। हम्म, उनके पास भी पूरा वो है, मतलब इनफ नॉलेज है। और तो वो थोड़ा सा होता है, लेकिन वहां पे एक होता है कि आईटी में मुझे ठीक लगा कि बीटेक के लिए एक ही कंपनी आ रही है, लेकिन बीटेक बीटेक के लिए अलग ओपनिंग रहती है, एमटेक के लिए अलग ओपनिंग रहती है, पीएचडी के लिए अलग अलग रहती है। तो हमें बीटेक वाले से कम्पिटिट नहीं करना, उनको हमसे नहीं लेना देना है। हमें कुछ कंपनियां छोड़ के तो लगभग लगभग सारे सबकी अलग अलग प्लेसमेंट होती है। तो लगभग हमारे क्लास में तो लगभग सारे लोग प्लेस्ड हो गए थे, हम्म। कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो सर आईटी हाँ, बॉम्ब। उसी दिसंबर में ही मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म भरा था। हाँ, उसके दिसंबर में ही बाद। फॉर्म भरा था प्लेसमेंट होने के बाद। हाँ, ऐसे ही भर दिया था, मतलब कोई चांस नहीं था कि हाँ, इसमें जाना है, मतलब ऐसे ही भर दिया था। हाँ, तो सर एमटेक जैसे आपने किया तो उसके प्रोजेक्ट्स में आप मतलब टॉपिक क्या था और? सब्जेक्ट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, है वहाँ पे। जैसे कि हाँ, देखो, जो सब्जेक्ट आप लेते हैं, 10 सब्जेक्ट या 5 जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, तो कुछ प्रोफेसर क्या होते हैं ना कि थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम लेते हैं। अगर 100 मार्क्स का एक पेपर हो रहा है तो उसमें 50 मार्क्स तो प्रोजेक्ट पे ही रख देंगे, अब 50 मार्क्स पूरे थ्योरेटिकल रहेंगे। ठीक है। अब कुछ प्रोफेसर रहेंगे वो पूरा 100 में से 70% मार्क्स पूरा प्रोजेक्ट पे रख देंगे, 30% मार्क्स जो रहेगा वो ऐसे रहेगा फुल पैक। तो मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट कुछ कुछ प्रोजेक्ट किए थे, उसमें से
सारे तो नहीं याद है, मतलब कुछ कुछ मुझे याद है, उसमें से मैं बता दे रहा हूँ। उसमें मैंने किया था क्या कहते हैं उसमें, सिंथेटिक अपर्चर रडार किया था। सिंथेटिक अपर्चर रडार में क्या होता है, सार एक रडार होता है, एक रडार सिस्टम होता है जो सेटेलाइट और एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, ठीक है। यह रडार धरती धरती जो होती है जमीन पर सतह को मतलब उच्च रेजोल्यूशन में इमेजिन करता है। हम्म, खास बात यह है कि यह सिस्टम दिन रात बादल हो या किसी टाइम हो, ये इसमें काम कर सकता है, ठीक है। हम्म, ये और इसमें क्या होता है, ये एक माइक्रोवेव सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूरा ऐसा है कि ऐसा नहीं कि लाइट के सनलाइट पे डिपेंड करेगा, मतलब वो अगर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो एयर सरफेस एक ऐसा है, वो एक पूरा ओवरव्यू टाइप का हम्म, पूरा ये उसको बना के एयरक्राफ्ट को मौजूद करा देता है। तो इससे क्या होता है कि उनको बम्बार्ड करने में या कोई भी एक्शन लेने में उनको सुविधा मिलती है कि कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे लोग नहीं है, या कहाँ पे हाइट कैसी है, ये सब चीजें वो निर्भर वो उस पे मतलब काम करता है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा मैंने यूज मतलब हम लोग का प्रोजेक्ट क्या था इसमें, प्रोजेक्ट हम लोग का क्या था कि इसको एनालिसिस करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे कि हम इसको और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मैंने उसमें था डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, कहाँ ज्यादा हम्म, बाढ़ आया है, हम्म, सुनामी के बारे में। हम्म, और उसके बाद कृषि में, एग्रीकल्चर में यूज किया, पर्यावरण एंड एविएशन में यूज किया उसको। हम्म, और सबसे अच्छा उसमें था मौसम की जानकारी करने के लिए, हाँ, अगर उसको पहले अगर बादल देखना है कितना ज्यादा है तो वो कर सकते हैं हम्म, इस पे वो। और एक दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा, वो था स्पेक्ट्रम ऑक्शन एनालिसिस करके था प्रोजेक्ट, स्पेक्ट्रम ऑक्शन। उसमें क्या होता है कि जितने ऑपरेटर्स हैं, जियो है, एयरटेल है, जो भी, इसमें स्पेक्ट्रम इनको ऑक्शन कैसे होते हैं, बीडिंग कैसे की जाती है। तो इसमें हम लोग किए थे कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बीडिंग हो सके और रेवेन्यू कैसे भारत सरकार जनरेट कर सके इस चीज ओके, से। और उसमें एक मेरा और था कि एक सेमिनार मैंने किया था, इसमें मुझे ए ग्रेड मिला था। 13 हर्ट्ज कम्युनिकेशन फॉर 5G टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, टी वेव्स होते हैं, इसमें एक्चुअली टी वेव्स होते हैं। इसका क्या यूज है, 13 हर्ट्ज के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी मतलब वेवलेंथ होती है ना जो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड जो होती है हम्म, उनके बीच में आती है। इसे हम्म, अक्सर 5G टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज डेटा ट्रांसफर करती है और हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। टेराइड हम्म, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, सिक्योरिटी, स्कैनिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। और इस तरह का भविष्य को, यह एक तरह की भविष्य की टेक्नोलॉजी इसको है। और मेरा मेन प्रोजेक्ट जो था एमटेक थीसिस जो है वो मैंने किया था उसपे। वो मेरा था शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन यूजिंग 5G बेस्ड लियो सैटेलाइट्स। मैं इसको आम भाषा में समझा दूं तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हम भारत में या भारत के बाहर भी ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 5G नेटवर्क या नेटवर्क मौजूद ही नहीं है, हाँ, है नहीं, ठीक है। वहां पे तो हम ऐसा क्या उसमें हम कर रहे थे कि हम लियो सैटेलाइट से एक डिजाइन कर रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। उसके अंदर हम 5G बेस्ड, उसमें अगर 5G अगर उसमें इंक्लूड कर देते तो जहां से वो मूव करता वहां के एरिया को 5G टेक्नोलॉजी या नेटवर्क हम प्रोवाइड कर पाते। तो उसमें हम लोग डिजाइन किए थे कि हाउ मेनी सैटेलाइट्स वी नीड टू कवर द होल मैप ऑफ इंडिया, हाउ मेनी सैटेलाइट्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट, उसकी बजट क्या होगी, क्या कहते हैं उसमें एजिमत उसका कितना होगा, क्या उसमें ये सब चीजें उसमें वो मतलब वो किया गया था। एक तरह से वो प्रपोजल टाइप का था, जैसे कि प्रपोजल टाइप का वो ये था उसमें। और उसका सिमुलेशन जो भी था उसमें मैटलैब में सारे सिमुलेशन उसके किए गए थे। सर आपने क्यूब सेट वगैरह में भी थोड़ा किया था कुछ? क्यूब सेट होता है जो, उसमें अप्लाई किया था क्या ये? फिर प्रपोजल ही था आपका? नहीं नहीं, प्रपोजल था ये, हम खाली प्रोफेसर को जमा कराया। एक्चुअली मैं बताना भूल गया हाँ, कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग हुआ था हम्म, थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर से ही प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। कि हम्म, फाइनल ईयर मेरा जब मेरी ज्वाइनिंग जो थी मई में थी, हम्म, मई में मेरी ज्वाइनिंग थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, मई 2023 में। और इसका सबमिशन जो था मेरा जुलाई के बाद था, जुलाई के बाद अगस्त तक था शायद। तो मैं इसको पूरा काम तो नहीं किया था, मैंने आधा काम करके मैं सर से बात करके कि सर मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे, क्या किया जाए। तो बोले ठीक है आप तुम चले जाओ ज्वाइनिंग कर लो, उसके बाद ऑनलाइन अपडेट देते रहना। तो मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेनिंग चलती थी उसके दौरान मैं संडे सैटरडे को जो मुझे टाइम मिलता था उसमें उसमें मैं काम करता था उस प्रोजेक्ट पे। फिर वो सबमिशन जो था प्रोजेक्ट मैंने जितना भी मैंने काम किया था उसको मैं सबमिट कर दिया था सर के पास। उसके बाद कोई उसके बाद मेरे बाद कोई जूनियर उसको कंटिन्यू किया होगा तो किया होगा, नहीं तो उसके बाद मुझे अपडेट नहीं पता चला उसका क्या हुआ। ओके सर। सर आईटी बॉम्बे से एमटेक करने के बाद आपको प्लेसमेंट भी मिल रही थी बढ़िया अच्छी खासी,
तो उसके बाद आपने एविएशन की तरफ अपना करियर क्यों मूव किया? ऐसा क्या रीज़न था एविएशन की तरफ जाने का गवर्नमेंट जॉब में? हाँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने कई सारे एसएससी के भी एग्जाम दिए। हाँ। तो एसएससी के एग्जाम मैंने 2019 में दिया था, जब मैं 18 साल का हो गया था। हुँ, 20 में 19-20 में मैंने एग्जाम देना शुरू किया था। ठीक है। तो उसके रिजल्ट अब मेरे को 2023 में आने शुरू हो गए थे लगभग। तो मेरे पास जब प्लेसमेंट हो गया तो मेरे पास एक ऑफर था अदानी ग्रीन एनर्जी का था। उसके बाद मेरे पास एक था ऑफर एसएससी दिल्ली पुलिस का था, उसमें सब इंस्पेक्टर था, एएसआई का था। हुँ, उसके बाद मेरे पास डीआरडीओ का एक ऑफर था, हुँ, जूनियर रिसर्च फेलो का था। और साथ ही साथ एक और ऑफर था, उसको तो मैं छोड़ ही दिया था, वो ऑफर तो नहीं, वो तो वैलिड ही नहीं था, इंडियन ऑयल में जो जूनियर इंजीनियर बताया था। तो ये 4-5 ऑफर थे। तो इन सब ऑफर में 2 चीज़ें थी, एक और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ग्रॉस था वो 12 एलपीए था, और अदानी ग्रीन एनर्जी का 13 एलपीए था। ठीक है। और काम के मामले में देखा जाए तो उसमें क्या थी कि मतलब कि मेन फोकस जो था मेरा मेरा था कि आई वांटेड ए करियर दैट गेव मी द बोथ स्टेबिलिटी एंड ए हाँ, चांस टू सर्व द नेशंस। ठीक है ना। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया था, ड्यूरिंग माय एजुकेशन एंड अर्लियर करियर आई रियलाइज वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनईपीएसयू नॉट ओनली अलाउ मी टू अप्लाई द टेक्निकल स्किल्स जो थी मेरी, वो इसमें बैकग्राउंड जो मेरी टेक्निकल थी इसमें अप्लाई हो जाते। हाँ, और अदानी ग्रीन एनर्जी में क्या था कि पूरा रिसर्च ओरिएंटेड था, मेरा टेक्निकल उसमें कुछ काम नहीं आता, मैंने जो भी हुँ, पढ़ा हुँ, था यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे क्या था कि आई वांटेड अ करियर वेयर माय वर्क वाज रियली इम्पैक्ट। हुँ, और यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंस सेफ्टी है, इफिशिएंसी है, स्मूथ ऑपरेशंस है, एयर ट्रेवल्स है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे अच्छा है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो कह सकते हैं ये बहुत यस, ज्यादा है। हुँ, और यहाँ जॉब पे जॉब ऐसा है कि सिक्योरिटी। और हाँ, हाँ, जॉब सिक्योरिटी कह सकते हैं, ये ज़्यादा चाहिए इसमें। हुँ, और यहाँ पे एक है चीज़ कि हमारा जो काम है एविएशन में, तो डायरेक्ट पीपल से कांटेक्ट नहीं होता है। ऐसा हुँ, नहीं है कि डायरेक्ट हमें पीपल से कांटेक्ट, लेकिन हमारा एक-एक डिसीजन जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स को इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता हाँ, है। ये है। कि अगर हम अच्छे से काम नहीं किए तो मतलब इतने लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। डायरेक्ट हुँ, कांटेक्ट कोई नहीं है, मतलब कोई हार्म भी नहीं हो सकता है डायरेक्ट, मैं किसी को कुछ कर भी नहीं हुँ, सकता। लेकिन एक डिसीजन में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इतना टाइम विदिन ए सेकंड हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ऐसा होता है कि हम लापरवाही की तरह काम नहीं कर सकते। जब आप ड्यूटी पे हैं तो पूरा आपको मतलब सरकारी में ऐसा कहा जाता है कि काम उतना ही होता हाँ, है, लेकिन यहाँ पे मेरे आने के बाद मुझे लगा कि इतना सीरियस माहौल है कि मतलब पूछो मत कि इतना हुँ, हमें, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या दिखता है, बस टर्मिनल दिखता है और कुछ तो हाँ, दिखता नहीं है, लेकिन उसके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराने के मैनेज लिए और करने वो में। सब चीजें हैं। हुँ, हाँ, तो मैनेज करने के लिए इतने लोग उसमें हैं कि मतलब कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए चीजें मैंने जो चीजें बात की वहाँ पे सीनियर से, यहाँ के सीनियर से बात की, तो मैंने देखा कि ये ठीक है, थोड़ा सैलरी यहाँ पे कम है कंपेयर टू द प्राइवेट, लेकिन जो माइंड पीस है, हुँ, पीस लाइफ यहाँ पे है, तो वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसा हुँ। है इन्वायरमेंट जो है। सर, ये एविएशन में अगर कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए मतलब क्या हम्म, प्रिपरेशन वगैरह कैसी रहनी चाहिए उसकी और क्या-क्या मतलब फॉर्म्स कैसे निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हम्म। और क्या-क्या प्रोसेस होता है? उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, एविएशन में क्या है कि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूंगा, हुँ, और भी कई सारे हैं। जैसे हाँ, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो दूसरों से अलग कैसे है, हुँ, हम क्या करते हैं और एयरलाइंस में क्या फर्क है। जो जितने एयरलाइंस है, इंडिगो है, चाहे टाटा है, चाहे जो भी विस्तारा है, इनका काम बस है एयरलाइंस में है। इसमें इनका क्या है कि यात्री को जो भी पैसेंजर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराना है। ठीक है। इसके पीछे इसके बैकबोन में जो काम करता है ये अलग लोग हैं। जैसे हुँ, कि फायर डिपार्टमेंट है, हुँ, सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल हुँ, वाले हैं, वैसे ही हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ही जो ऑपरेटर है, इसी के अंदर कई सारे ब्रांचेज हैं। जैसे कि सीएनएस है, एटीसी है, और फायर है, सिविल है, और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने के लिए एचआर है, फाइनेंस है, और सारी कई सारी चीजें हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं सीएनएस में आता हूँ, और एक एटीसी होता है। दो तरह के होते हैं एयरपोर्ट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एक सीएनएस और एक एटीसी हो गए। और इन दोनों की वैकेंसी लगभग हर साल आती है। ठीक है। तो हर साल इसमें आती है। तो देखो एटीसी वाले क्या होता है, उनका मेन जो फोकस होता है, मेन फोकस वर्क वर्क जो होता है, 70-80% का काम बस होता है कि पायलट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, उनको उनको नेविगेट करना है और उनको रूट प्रोवाइड करना है। ठीक है। और हमारा जो सीएनएस का है, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस जो है, इसमें इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मतलब पूरा काम हमें इनको उनको बैकबोन तरह का उनको
एक सपोर्ट देना है, जैसे कि कोऑर्डिनेट विद द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम जो होती है, टू इंश्योर द क्विकली एंड एफिशिएंसी। मतलब जो भी हमें काम दिया गया है, जैसे कि जो टेक्निकल वर्क है, जैसे कि एयरक्राफ्ट से बात अगर एटीसी कर रहा है तो लाइक ए माइक्रोफोन का यूज कर रहा है, कुछ उसमें ट्रांसमीटर लगे हैं, रिसीवर लगे हुए हैं, एज वेल एज उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और सर्वर्स एंड सिस्टम्स हैं। तो हमारा मेन काम क्या है कि इनको मॉनिटर करना है, जितने सर्वर सिस्टम्स लगे हुए जो भी टेक्निकल स्पेक्स हैं उनको मॉनिटर करना, मेंटेन करना है, रडार को मेंटेन करना है, नेविगेशन को, कम्युनिकेशन को, एंड सिस्टम टू बी इंश्योर द इंटरप्ट, मतलब उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अगर वॉइस यहाँ से अगर कुछ भी बोल रहा है एटीसी, तो वो डायरेक्ट वहाँ उनके पास पहुंच जानी चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना, कोई ट्रांसमीटर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिसीवर में भी कोई नहीं होना चाहिए। और जितने भी टीम्स हैं सबकी जो मेन फोकस होती है वो होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की होती है, ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे कि प्लेसमेंट पे, अब काम तो समझ गए थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे सबका काम है, फायर वालों का काम जान ही रहे हो, सिविल वालों का काम जान ही रहे हो, तो अब इसमें वैकेंसीज कैसे निकलती है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी साइट पे ही, AI.aero पे ही, उनका ऑफिशियल साइट पे ही कैरियर सेक्शन में ही सीएनएस के लिए, सीएनएस जो भी वैकेंसी है वो गेट के थ्रू आती है, हर साल आती है लगभग, मैं तो देख रहा हूँ हर साल गेट, अगर गेट का आपने स्कोर थोड़ा बहुत भी अच्छा किया है तो आपको ठीक ठाक उसमें डायरेक्ट विदाउट इंटरव्यू डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। और एटीसी में क्या होता है कि एटीसी में क्या है कि उसमें हर साल लगभग एक, हर साल नहीं हो रहा था, एक साल बाद उसका एग्जाम होता ही होता है। तो एटीसी में क्या होता है, पेपर मैंने एटीसी का एग्जाम मैंने भी दिया था, उसमें ठीक ठाक मेरे नंबर थे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया एटीसी, तो वो थोड़ा है, क्योंकि मेरा सीएनएस ठीक ठाक था। तो एटीसी में क्या था कि उसमें आपको हर साल एग्जाम होने हैं, और उसमें क्या है कि आपको पूरा टाइम मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको पायलट से बात करना है, ठीक है। तो एक सीएनएस हो गया, एक एटीसी हो गया, और सारे जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के हैं, फायर डिपार्टमेंट के, एचआर के हैं, फाइनेंस की, इनकी वैकेंसी हर साल आती रहती है, और इनकी बेसिक पे 40 से स्टार्ट हो जाती है लगभग, जितने जूनियर इंस्टीट्यूट होते हैं 40 से स्टार्ट होते हैं। इसमें पर्क्स भी इंक्लूड होते हैं, पर्क्स इंक्लूड होने के बाद 35% 40% जो भी होते हैं, और फिर डीएट ये अलाउंस तो लगभग 1 लाख प्लस प्लस हो जाते हैं आराम से। उसके बाद कई सारे पर्क्स भी मिलते हैं, मेडिकल के पर्क्स हैं, स्पेकल्स के हैं, डेंटल के हैं, और मेडिकल अलाउंस है, डिपेंडेंट जो भी है वो मेडिकली फ्री हो जाता है लिमिटेड टाइप के टाइम के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी वैकेंसीज आती है, और एएडीसी का एग्जाम जो है, तो वो जितने भी ग्रेजुएशन है, जब उनके ग्रेजुएशन में बस मैथ और फिजिक्स इंक्लूड होना चाहिए, वो एग्जाम दे सकते हैं और आराम से उस जॉब में जा सकते हैं। मतलब लेकिन जो सीएनएस वाले हैं, हाँ हाँ, मतलब हर इसमें गेट के ब्रांच थ्रू वाले ही दे होगा। सकते हैं इसको। एटीसी वाला हर ब्रांच वाले दे हाँ सकते हैं, और सीएनएस वाला सिर्फ हाँ, एटीसी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। सीएनएस का सिर्फ हाँ सीएनएस वाले बस कम्युनिकेशन गेट, वाले। ओके। हाँ कम्युनिकेशन वाले, हाँ हाँ। हाँ। और उसमें कोई भी ब्रांच का जा सकता है, तो लगभग क्या होता है उनकी थोड़ी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, लेकिन पेपर बहुत आसान आता है, आप एक बार पेपर देख लोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको लगेगा कि हाँ वो आसान है, और सैलरी भी ठीक ठाक है। और जॉब का क्या है कि 6 आवर्स पर डे वर्क करना है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी में। अगर जनरल ड्यूटी है तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे आप आएंगे और शाम को 6 बजे जाएंगे, और संडे सैटरडे ऑफ रहता हम्म, ओके सर। सर एटीसी वाले में भी इंटरव्यू का कोई प्रोसेस होता है कि वो भी डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूट करता है? है। देखो, कहने वाली जो बात है डायरेक्ट होती है, लेकिन उसमें इंटरव्यू होता है, वॉइस का इंटरव्यू होता है, हाँ। हियरिंग का इंटरव्यू होता है, और हाँ। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें, और आई का। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि आप कंटिन्यूअस सीट तो हो सकते हो, बैठ तो सकते हो ना, बात तो कर सकते हो ना, वॉइस आपकी जो वोकल्स है वो क्लियर कमांड होनी चाहिए। सबसे मैंने यहाँ पे ये चैलेंज फेस किया कि आपकी वॉइस जो होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या किसी को कोई भी चीज समझा रहे हो तो उसको ऐसा बोलना है कि उसको समझ आ जाए। अगर आप पता चले आप हिंदी में बोल रहे हो, इसको इंग्लिश समझ आती है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो उसको हिंदी समझ आती है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है तो दिक्कत लैंग्वेज होती है। बैरियर। कई लोगों की आवाज ऐसी होती है कि वो ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन उनकी वॉइस एक दो बार में भी नहीं समझ में आती है, आप कई बार सुनो तो समझ आती है। तो एटीसी वाले में जब आप पोस्ट पे बैठे हो, आप बात कर रहे हो पायलट से, तो पायलट कहीं का भी हो सकता है ना, हम्म। वो अमेरिका भी पायलट हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, और कहीं का भी हो सकता है। हम्म। तो अगर वन वे में आप उसको समझा दिए कि आपको यहाँ टूवर्ड हेड करना है, डिक्लाइन करना है, इंक्रीज करना है स्पीड, कुछ भी उसमें उसको बता रहे, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो आपका वॉइस जो होना चाहिए पूरा उस पर प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि प्रॉपर इंटरव्यू टाइप का हो रहा है, लेकिन ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये होता है जरूर से। हम्म। सर उसमें लैंग्वेज मतलब मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी दो ही लैंग्वेज आ रही है तब नहीं हो सकता?
नहीं, मैं तो देखा हूँ कि यहाँ पे जो भी वॉइस वगैरह मैंने रिकॉर्डिंग में जो भी हाँ सुनी है, तो उसमें सब इंग्लिश ही होता है। मोस्टली इंग्लिश ही सब प्रेफ़र हाँ करते हैं। मोस्टली आई वाला क्या होता है इसमें, आई साइड का आप बता रहे हैं जैसे हाँ, आई साइड आई टाइप का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर कलर ब्लाइंड। ब्लाइंडनेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंडिकेशन होते हैं ना एयरक्राफ्ट्स के हैं हाँ या चाहे कोई भी इंडिकेशन, वो रेड है, ग्रीन हाँ है, ब्लू है, चाहे सिग्नल। जैसे भी इंडिकेशन है, एलईडी है, तो वो जो डिस्प्ले पे दिख रहा है तो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, अगर ग्रीन दिख रहा है हाँ तो आप कुछ और उसको समझ रहे हो, तो वो हाँ इसलिए मैंने बोला है। ओके ओके सर, तो इसका तो अगर ये माइनस प्लस से कुछ अगर सच में लगाने से वो ठीक हो जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा है। उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कलर ब्राइटनेस आप फुली कलर ब्राइटनेस है तो वो हाँ ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ हम्म पे पूरी काम इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है और वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम होती है। होगी फिर। ठीक है सर, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसमें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पे आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, और मतलब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है ना, वर्किंग इन a government organization that taught me that the primary goal is not profit। हम्म गवर्नमेंट में यही है कि प्राइमरी गोल जो आपका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती, हम्म ठीक है ना। बट ये काम करती है पब्लिक सर्विस एंड सेफ्टी का काम करती है, ठीक है। एविएशन की बात करें और कोई भी जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाले हैं तो उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, पैसे कुछ ज्यादा नहीं बनाने हैं, हमें सेफ्टी देना है लोगों को। और यहाँ पे मैंने पेशेंस डिसिप्लिन जो है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस में देखा कि पेशेंस कितनी जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल आप कुछ नहीं है, टीम वर्क से आप काम करेंगे तो आप बहुत कुछ है, सब काम आप टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, टीम वर्क से आप सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप इंडिविजुअल सोचेंगे कोई काम करने के लिए तो मुश्किल है। इंडिविजुअल आप सोच रहे हैं कि कुछ भी हम अच्छा करने के लिए, तो आप मुश्किल है। मतलब आपका जैसे कि आप अगर आपको आइडिया है तो अपने सीनियर को शेयर करेंगे, वो आगे बढ़ पहुंचाएगा। डायरेक्ट आप इम्पैक्ट, और प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिलता है, डायरेक्ट आपको अचीवमेंट जो भी चीजें हैं अचीवमेंट ऐसा मिलता है। तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि आप, ये थोड़ा सा है कि आपको चीजें टीम वर्क के साथ ही इंश्योर करके ही चलनी है। अगर आप कोई भी चीज ऐसा बोल रहे हो कि ये चीज काम सही कर रहा है तो उसको डबल चेक करना जरूरी है कि हाँ ये काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप अपने सेफ्टी जो भी सीनियर्स हैं उनको आप कन्वे करेंगे, फिर उसके बाद वो होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्या है कि और यहाँ पे काम करने में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड दो, मतलब जो भी है, हम्म ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड दोनों चीजें मिल जाती हैं। हम्म और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट में क्या है कि डायरेक्ट, मैंने जो पहले बताया कि डायरेक्ट पीपल इम्पैक्ट जो होते हैं, आपके डिसीजंस हो जाते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका पीपल से नहीं है लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्योंकि मैं भी जब मैं इसमें नहीं आया था तो मुझे पता था कि एयरक्राफ्ट ही जो है सारी जिम्मेदारी इंडिगो की ही है। हम्म लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इंडिगो की ही सारी जिम्मेदारी नहीं है, उसके बैकग्राउंड में काफी लोग लगे हुए हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे जो एटीसी बैठा हुआ है जो लगातार कम्युनिकेट कर रहा है पायलट से, हम्म लगातार वो 2 घंटे 4 घंटे बोले जा रहा है, मतलब उसको बताया जा रहा है कि अब कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये चीजें। तो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होते हैं कि सारे में काम कम होता है। काम किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है, आप इन्वायरमेंट में ढल जाते हम्म। हो ऐसे। सर, लोगों को मिथ होता है कि गवर्नमेंट जॉब एक हो गई तो आराम ही आराम है, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, वो तो होती है, लेकिन एक मिथ होता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वो उस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जैसे। देखो, गवर्नमेंट जॉब में एक बार ज्वाइन हो गए तो हो गए, ये तो बात मैं भी सुना हूँ, तो हम्म मैं देखा भी हूँ। लेकिन मैं अपने यहाँ देख पाता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे अब जैसे अभी तो हम लोग जूनियर्स ही हैं कह सकते हो, तो यहाँ बड़ा एयरपोर्ट है तो यहाँ काफी चीजें डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ, मैं पाता हूँ कि जो जितना अच्छा करता है उसको उतना अप्रिसिएशन मिलता है, डिपार्टमेंट में उसकी इज्जत उतनी होती है हम्म और उतना काम करते हैं वो लोग। हम हम्म उन्हीं की वजह से हम लोग ऐसे आराम से थोड़े से बैठ जाते हैं। मुझे लगता है मैं जब उस पद पे जाऊंगा, मैं उस वहां पे जब पहुंचूंगा तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम्म कुछ डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट, या अदर जो गवर्नमेंट है, अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई फोर्सफुली है क्या काम करो, क्योंकि हाँ उन्हें पता है हम काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो जानबूझकर अगर अगर किसी को भी फील हो रहा है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं या इच्छुक नहीं है करने के लिए, तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप काम करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको खुद रियलाइज हो जाता है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे हैं लोग,
तो यहाँ सब वेल एजुकेटेड हैं, उन्हें सब अच्छी तरह ये पता है कि हम कैसी हालातों से होके यहाँ पे आए हुए हैं, तो और कितनी जरूरत है कि हमें अच्छे से काम करना है, और अच्छे से काम करेंगे तो ही हमारा अप्रिसिएशन होगा, और जो भी चीजें हैं कि सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो पाएगी, और चीजें जो लेजीनेस वाली चीजें हैं वो थोड़ी जो ज्वाइनिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ वाला दिमाग रहता है कि अरे चलता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हमारा पोजीशन कितना महत्वपूर्ण है और कितना चीजें हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम सीरियस नहीं हुए तो कोई हमारी वजह से कोई गलत चीजें ना हो जाए। अगर मैं कोई चीज दिख रहा हूँ, मुझे एलईडी दिखी गया जो रेड इंडिकेशन दे रहा है, जितना भी लेजी हूँ, मैं मानता हूँ मैं लेजी हूँ, लेकिन एक पल को ख्याल आएगा कि अरे यार नहीं, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अगर आज नहीं करूंगा कल नहीं, मतलब ये छोटा इंडिकेशन एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। कई जगह ऐसा होता भी है, कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पायलट की ही गलती है, लेकिन उसको जब सिग्नल ही नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा चीज है कि उसको हम प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो वो अब तो है नहीं बताने के लिए। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा आप लेजी हो जाते हैं, सियोरिटी है मैं मानता हूँ, लेकिन आप काम करने के लिए खुद ही अंदर से आने लगता है कि अब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट है लोग मेरे ऊपर, ऐसा हो जाता है। सर जैसे अभी आप जूनियर लेवल पे हैं वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो फिर उसमें प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है? सीनियर लेवल पे जाना है, कितना मतलब एक्सपीरियंस कितना चाहिए उसके लिए, और वर्किंग कितनी होनी चाहिए, नॉलेज कितनी होनी चाहिए? देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ जो प्रमोशन है वो फिक्स्ड है, हाँ, ठीक है, उसमें आपको कुछ करना नहीं, ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई नहीं करना है। तो उसके बाद मेरा 3 साल होने वाला है, अगस्त में मेरा मतलब अगले साल मेरा प्रमोशन है मई में। मई में असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा, तो लगभग जे और असिस्टेंट मैनेजर तक 3 साल, फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर तक लगभग 3 या 4 या 5 साल लग सकते हैं, फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर तक 3 या 4 5 साल लग सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल लगते हैं एक प्रमोशन से दूसरे तक जाने में, अगर ऊपर वैकेंसी खाली है तो। फिर सीनियर मैनेजर तक जाएंगे, फिर वहां पे एजीएम तक जाएंगे, फिर मतलब ऐसे ऐसे डीजीएम, फिर जेजीएम, फिर ऐसे ऐसे ऊपर तक मतलब चलते जाएंगे। तो हर 3 3 साल पे प्रमोशन लगभग होते हैं, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 या 6 साल भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बीच बीच में कुछ डीजीएम जैसे लेवल है उससे ऊपर है तो उसमें इंटरव्यू वगैरह होते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट का जीएम बनना है तो उसके लिए इंटरव्यू होते हैं। तो लगभग जब तक आप 60 साल के होते हैं तो लगभग वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर बहुत अर्लियर एज में आप ज्वाइन करते हैं। हाँ, मतलब ये फिक्स होता है वहाँ का प्रमोशन, टाइमली बेसिस पे होता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया 3 साल हम्म 4 साल तो हाँ, फिक्स। मिनिमम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 6 साल का। सर ये लास्ट क्वेश्चन है कि जूनियर्स वगैरह हो गए, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो? जूनियर के लिए एडवाइस मेरा 2 4 पॉइंट्स है। मैं पॉइंट तो मेरे क्या है, जो न्यू बिगनर्स हैं जो तैयारी करने चाह रहे हैं, पहले चीज मैंने बताया था कि फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट में काम आ जाएंगे। और दूसरी चीज है कि प्रिपरेशन, स्टार्ट प्रिपरेशन लाइक गेट एग्जाम, एसएससी, एआई एंड अदर, देयर इज लॉट्स ऑफ एग्जाम्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले चीज है कि आपको जाना किस फील्ड में है, ये आपको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कई सारे एक्सप्लोर किए, इंटर्नशिप भी करता था, इंटरसाले पे पैसे कमाए, फिर प्रोग्रामिंग भी सीख रहा हूँ, उसमें मैं प्लेसमेंट भी देख रहा हूँ, फिर उसमें मैं गेट का भी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप एक एक डायरेक्शन में ही अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक ही चीज को अगर आप 3 साल 2 साल 3 साल 5 साल दे रहे हैं तो गलत बात है। आप गोल अपना चेंज मत करो, लेकिन डायरेक्शन तो कुछ तो चेंज करने की जरूरत है, कुछ तो कहीं कमी आ रही है। और बहुत सारे मल्टीपल सोर्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैं भी करता था, ऐसे लोग भी करते हैं कि बहुत सारे पीडीएफ से इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे बुक से इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ना होना कुछ नहीं है। तो वो चीजें मल्टीपल रिसोर्स आप कैरी मत करो, कुछ लिमिटेड रिसोर्स कैरी करो और उसी में ही करो। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने आप पे कि बहुत ये नहीं करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा डिफाइन करना है मुझे क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज कर लोगे क्लियर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो पढ़ना दुनिया भर की चीजें हैं, मुझे क्या नहीं करना ये जाना, मुझे क्लियर होगा कि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना, तो मेडिकल लाइन में नहीं जाना, तो अगर हमें बड़ा इंजीनियरिंग लाइन बची है और दूसरी लाइन देखा जाए क्या नहीं करना है, ये थोड़ा सा ठीक रहता है। और दूसरा चीज ये है कि जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ना, इंटर्नशिप कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में करना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड में इनफिशियंस है। जस्ट कुछ थ्योरी करने की जरूरत नहीं है कि मतलब कर लिए। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे किए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट किया और कई सारी चीजें किया, कहीं मुझे रियल लाइफ उसका यूज
ऐसा नहीं मैं बहुत अच्छे से किया था कि मुझे उसका बेनिफिट, मतलब मैंने कर लिया, 1 महीने का कोर्स है, बस कर लिया, बस आ गया, बस ऐसा। तो हाँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको एक अगर लग रहा है बेसिक। कि हर एक डायरेक्शन में अपना करके वो कर सकते हो। और दूसरा चीज है कि बी पेशेंट रहना है हमेशा ही, ठीक है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। बस हो जाते हैं कि मेरा फिर एग्जाम निकल रहा है, ये इतना टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कुछ आप मिस कर रहे हो उसमें, कुछ तो ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हो, या अपना टाइम कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या कुछ चीजें हैं जो कमी हो रही है, उसको पूरा करने में फोकस करना चाहिए। इस काम पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं मेरा हो क्यों नहीं रहा है। और जॉब तो लग ही जाता है यार, जॉब आज नहीं कल नहीं परसों तो जॉब तो सबका लग ही जाना है, जहाँ जिसको लिखा हुआ है या जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है ना, इसको मिस आउट करना बहुत गलती है। तो 1-2 साल बहुत है, इनफ है, तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच टू यू आल्सो।